A massive political firestorm has erupted just days before the Assam Assembly polls. Congress leader Pawan Khera has accused Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma's family of amassing undisclosed offshore assets and holding multiple foreign passports. But the Chief Minister isn't just denying the charges. He's alleging a Pakistani-backed AI conspiracy and vowing to send Khera to an Assam jail for life. In a New Delhi press conference on April 5th, Khera displayed what he claimed were 3 foreign passports from the UAE, Antigua and Barbuda, and Egypt, belonging to the CM's wife, Riniki Bhuyan Sharma. Khera questioned why these documents and luxury properties in Dubai were omitted from Sarma's election affidavit. He further alleged the family operates a shell company in Wyoming, USA, and claimed the family's assets have reached a staggering 52,000 crore rupees. But I want to ask them, are they denying that they have no property in Dubai? Are they denying that they have no company in America? Are they denying that they have no shell companies anywhere in the world? Sarma rejects charges. He flagged 6 glaring inconsistencies in Khera's documents, including a misspelling of his own surname as Sarma instead of Sharma. The Chief Minister alleged the material originated from a Pakistani social media group and was manipulated using AI Photoshop. He clarified that his wife's UAE ID erroneously listed her nationality as Egyptian and that the QR codes on the title deeds were invalid. Yesterday, Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences, one in Delhi, one in Guwahati. Normally, when you raise a certain issue before the public with fraud documents, it attracts 420 and 468 of all IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use these allegations with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision, and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. But why I have came before you today? Because during our research we found the entire material of the press conference which has taken place yesterday was supplied from a Pakistani social media group. ये जो वीसा पासपोर्ट प्रोड्यूस किया है, इसको अगर आप गूगल रिवर्स सर्च करते हैं तो ये सीधा चला जाएगा एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप में, पाकिस्तानी इन अजमान. वहां में लॉस्ट एंड फाउंड दिखाई देते हैं. वहां में 2 मुस्लिम लोगों ने अपना वीसा पासपोर्ट लॉस्ट होने का इंफॉर्मेशन दिया था. उन्हीं का डेटा यूज करके रिनिकी का फोटो को सुपर इम्पोज करके कालिए बनाया गया. सेकेंड, जो अमेरिकन कंपनी का नाम बताया, anybody can pay 20,000 Indian rupees, $199. Anybody can register any company in that state. हमारे सबसे जो बड़ा एलिगेशन है, भाई आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद लिए? पहले ही हमारा एलिगेशन है गौरव और पाकिस्तान आर इन टच. और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान. ये ग्रुप का नाम है ना, ये ग्रुप से ही पूरा सीज लिया गया है, पाकिस्तानी इन अजमान. दिस इज द नेम ऑफ द ग्रुप. तो हमारे बारे में जो बोला है, विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एवरीथिंग,
बट मेरा खरा खरा एलिगेशन है, व्हाई पाकिस्तान इज हेल्पिंग गौरव गोगोई। 10 टॉक्सो हुए और आप लोगों को मालूम है, मैं फिर नाम भी बता देता हूं, 27 मार्च ओटोनो भुइयां ट्वीट किए थे कि ऐसा काम चल रहा है। इफ यू गो टू हिज ट्विटर ऑन 27 मार्च, उन्होंने 27 मार्च में ही ट्वीट कर दिया था कि कांग्रेस ये एआई बनाने जा रहा है। मतलब कांग्रेस का अंदर से ही मुझे पहले खबर मिला था। देन मैंने ओटोनो को बोला था कि यू हैव लॉट्स ऑफ लिंक, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो फिर रात को ओटोनो ने बोला हाँ कुछ चल रहा है, एंड ही ट्वीटेड दैट टू ऑन 27 मार्च इटसेल्फ। आप लोग उनका ट्विटर में जाके देखिए, 27 मार्च ही वो वार्न किए थे कि ऐसा होने जा रहा है। हम लोगों को कांग्रेस का इंटरनल सोर्स से ही ये खबर आया था। बट मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं। 10 टॉक्सो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा, मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोलूंगा। The battle is now headed to the courts. Riniki Bhuyan Sharma has already filed an FIR, while the Chief Minister announced both criminal and civil defamation cases within 48 hours. Sharma warned that using fabricated documents to influence an election outcome attracts life imprisonment under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). हजार झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते ही आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहाँ उन्होंने अवैध तरीके से ज़मीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए। तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे ज़मीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी।